Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Students, today we are learning about adaptation in animal. First of all, we define adaptation. The adjustment their surroundings. These are called adaptation. Students, हम अपने अगल बगल जो सामंजस्य बैठाते हैं, जहाँ हम रहते हैं चारों तरफ जो सामंजस्य बैठाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टडी हैबिtat. The place where an animals live is called habitat. Students, the place where an animals are lives, these are called habitats. According to habitats, animal can be defined into 5 groups. Students, according to habitats, animal can be defined into 5 groups. First, terrestrial animal. Second, aquatic animals. Third, amphibian animals. Fourth, arboreal animals. Fifth, aerial animals. Students, first of all, we define all the groups of animals. First, terrestrial animals. Some animals live on land. These are called terrestrial animals. Some animals live on land. These are called terrestrial animals. For example, humans, dog, tiger, lion, deer, giraffe, donkey, etc. Students, so next, aquatic animals. Some animals live in water. These are called aquatic animals. Some animals live in water. These are called aquatic animals. For example, fish, crabs, shrimp, etc. Students. Next, amphibians animal. Some animals live in water and lands. Some animals live in water and on the lands. These are called amphibian animals. For examples, frog, salamander, water snake, turtle, etc. Students, next, arboreal animal. Some animals spend more their time on tree. These are called arboreal animals. For example, monkey, lizard, bird, monkey, lizard, squirrel, etc. Next, aerial animal. Students, some animals spend more their time in air. These are called arboreal animals. For examples, bird. Aerial animals. Some animals spend more their time in air. These are called aerial animals. For example, birds. Okay, students. First, terrestrial animal. Students, some animals live on land. These are called terrestrial animals. For example, humans, elephant, dog, rhino, deer, lion, tiger, giraffe, etc. Students, they have following a special feature that help them to live on land. Students, ये जीव कुछ अलग प्रकार के फीचर्स
अलग प्रकार के कैरेक्टर इनके बॉडी में होते हैं जिससे वे आसानी से लाइन पर रह लेते हैं। वे कैरेक्टर इनको लाइन पर रहने के लिए हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लंग्स। लंग्स मीन्स ब्रीथिंग ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, lungs means breathing organs. Some animals breathe with the help of lungs. These animals are found on land. For examples, man, dog, elephant, etc. Students, ये ऐसे जीव हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं लेकिन सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ये लैंड पर होते हैं और सांस जो है वो लंग्स के माध्यम से लेते हैं। इनके बॉडी में ये जो लंग्स है तो स्पेशल फीचर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, गिल्स। सम एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, फिश, क्रैब्स, etc. Next, sparkles. Some animals breathe with the help of sparkles. For example, grasshopper. Students, आप तो grasshopper देखे होंगे, देखे हैं? टिड्डा जिसे कहते हैं, टिड्डा। Students, ग्रासहोपर भी लाइन पर पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं और ये इनमें सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होता है स्पार्कल्स। ये स्पार्कल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया का मतलब एक पाइपलाइन होती है जो पूरे शरीर में फैली रहती है जिसमें से एयर जाती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, some animals have well developed nervous system and sense organ. Students, there are 5 sense organs are found in our body: skin, nose, tongue, eye, ear. स्टूडेंट्स, लैंड पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत वेल डेवलप होते हैं। स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ही वे अपने शिकार को पहचान लेते हैं और अपने आप को अपने शत्रुओं से बचा भी लेते हैं। वो देख करके ही दूर से ही भाप लेते हैं यह मेरा प्रे है या मेरा एनिमी, और वो अपने आप को बचा लेते हैं और ये उनका शिकार है तो उसका शिकार कर लेते हैं। तो उनमें जो है सेंस ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। जैसे मानव है, अभी हमने आपको पता, जैसे स्किन है, सेंस ऑर्गन्स है, कोई हमारे बॉडी में टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने टच किया है और कहाँ टच किया है उसके बारे में भी जानकारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पैर में टच कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि सर में टच कर रहा है, ऐसा नहीं। सेंस ऑर्गन्स आपके बॉडी में इतने डेवलप है कि जिस पॉइंट पर वो टच करेगा वो पॉइंट के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि वो कहाँ टच किया। जो नर्वस सिस्टम है वह एक बहुत छोटी छोटी पतली पतली नर्व का जाल पूरे बॉडी में फैला रहता है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स हमें अगल बगल के एटमॉस्फेयर की, हमारे बॉडी में होने वाली चेंजिंग की, सब चीज़ की जानकारी हमको होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, legs. Some animals have strong legs that help them to walk and run fast. Students, लैंड पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पैर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और लंबे होते हैं।
जिससे वे आसानी से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं। Some do not have strong legs like snake. They travel along the grounds with the help of scale. Students, अभी हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। जैसे आपने टाइगर को देखा होगा, लायन को देखा होगा, वो दौड़ा करके अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। उनके पैर तो मजबूत हैं, तभी तो वो दौड़कर पकड़ लेते हैं। और उससे भी मजबूत पैर होते हैं डियर के। नेचर ने उसको इतनी स्पीड दी है कि यदि वो पहले देख ले उसको कितना भी दौड़ाए पा नहीं सकते। इसलिए लायन टाइगर क्या करते हैं, पहले झाड़ियों में छिपते हैं। जब धीरे धीरे डियर वगैरह उनके पास आ जाते हैं, वो देख नहीं रहा होता है, तब ये अचानक से अटैक करते हैं उसके ऊपर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एलिफेंट का जो पैर होता है वो पिलर लाइक होता है। पिलर समझ रहे हैं ना, इसे मोटे मोटे से और नीचे पूरा चौड़ा होता है। इसलिए कि एलिफेंट की जो बॉडी होती है वो बहुत हैवी होती है। जब पिलर लाइक रहता है तो पूरे शरीर का बैलेंस उस पर एडजस्ट हो जाता है। भाई बहुत पतला होता है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि जमीन में घुस जाता है। लेकिन चौड़ा होने की वजह से वह उसके शरीर के बैलेंस को आसानी से एडजस्ट कर लेता है, जिससे वह लैंड पर आसानी से चल लेता है। कैमल में देखिए आप, कैमल हार्ड डिजर्ट रीजन में पाया जाता है। उसके पैर लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं, लेकिन बहुत लंबे होते हैं। उसका शरीर बहुत ऊंचा होता है। डिजर्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब दिन में धूप निकलती है वहाँ का टेम्परेचर 50 हो जाता है, 50+ हो जाता है। इतनी तेज धूप हो जाती है कि अन्य जीव वहाँ दिन में बाहर आते ही नहीं, ज़्यादातर वो रात में बाहर निकलते हैं। तो कैमल का पैर इतना लंबा रहता है कि जब सैंड गर्म हो जाती है तो जो हीट एनर्जी रिलीज करती है तो उसके बॉडी तक नहीं पहुँच पाता, नहीं तो वो भी वहाँ नहीं रह पाता। डिजर्ट रीजन में जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं वो दिन में तो बिल्कुल निकलते ही नहीं, क्योंकि बालू इतनी तेज गर्म हो जाती है कि उस पर निकले तो वो जल जाए। तो वहाँ पर जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं वो नॉकटर्नल हो जाते हैं, वो रात्रि के समय निकलते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कैमल का जो पैर होता है वो बहुत लंबा होता है और नीचे जो होता है वो गद्देदार होता है, जिससे वह आसानी से रेंग करके उस पर चल लेता है। स्टूडेंट्स, कैमल्स एनिमल दैट लिव ऑन हार्ड डिजर्ट्स हैव थिक स्किन। जो कैमल की स्किन होती है स्टूडेंट्स वो बहुत मोटी होती है और उसके उस बॉडी पर जो हेयर होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। घने होने से मतलब ये होता है कि जो हीट एनर्जी है उसके पास नहीं पहुंच पाती स्किन तक, और स्किन बहुत मोटी होती है जिससे उससे इवोपरेशन नहीं होता। हम लोगों को क्या है कि जैसे थोड़ी सी गर्मी लगती है तो शरीर से पसीना बाहर आने लगता है और थोड़ी देर बाद हमको प्यास लग जाती है। प्यास हम न पिए तो हमको हीट स्ट्रोक लग जाएगा यदि पानी में पिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कैमल में इतने घने बाल होते हैं, इतने घने बाल होते हैं उसके बॉडी से इवोपरेशन होता है। स्किन इतनी मोटी हो कि वह आसानी से वहाँ के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेती है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप देम ऑफ फ्रॉम द हीट हार्ड सैंड एंड हेल्प टू कीप इट्स द बॉडी कूल। कह उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वो जो सैंड की हीट एनर्जी है उससे आसानी से अपने आप को बचा लेता है, आसानी से बचा लेता है, अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है। और ये भी आप जानते हैं कि वह एक बार पानी पीता है तो एक आध सप्ताह एक पानी न मिले तो अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेता है। यानी ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे लॉन्ग लेग्स,
पैडल फीट्स, थिक स्किन्स, ये सब कैरेक्टर इस तरह से उसके बॉडी में है जिससे वह अपने आप को आसानी से सैंड में एडजस्टमेंट कर लेता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने देखा होगा कि ऊंट के शरीर में ऊपर से जहाँ एक कुबड़ होता है स्टूडेंट्स, वह कुबड़ में फूड को स्टोर करता है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट्स, उसके पास सप्ताह भोजन नहीं मिलता, तो उसने जो भी फूड मटेरियल स्टोर किया है वह वाटर और फूड मटेरियल जो भी उसमें स्टोर है उससे वह अपना काम चलाता रहता है। स्टूडेंट, जैसे आपके बॉडी में लीवर, जब हम ग्लूकोज को खाते हैं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर हो जाता है। जब कभी हम फास्ट रहते हैं स्टूडेंट्स, या किसी कारणवश हमको भोजन नहीं मिलता या हम घर से नाराज हो जाते हैं, तो गुस्से में खाना नहीं खाते, तो ऐसे कंडीशन में हम चलते तो हैं, बोलते तो हैं, देखते तो हैं, सांस भी लेते हैं, यानी हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब होती रहती है। और आप ये भी जानते हैं साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कि हमारे शरीर की क्रियाओं को, यहाँ तक कि हमको सांस लेने और छोड़ने में भी एनर्जी की जरूरत होती है, देखने में भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर है, वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को एनर्जी देता रहता है, जिससे हम कुछ भी नहीं खाए रहते हैं फिर भी हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से कैमल जो है उसके हम्प में जो भी फूड मटेरियल स्टोर है, वाटर स्टोर है, उससे वह जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं, भोजन नहीं मिलता या वाटर नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में वह उससे भोजन और वाटर को लेता रहता है और वह अपने आप को उस तरह के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्टमेंट किए रहता है। स्टूडेंट्स, नाउ पोलर बियर एंड पेंगुइन। स्टूडेंट्स, आप पोलर बियर आप देखे हैं, रियल में नहीं देखे हैं, लेकिन आप बुक में तो उसका फिगर देखे हैं, और पेंगुइन का भी फिगर आप बुक में देखें। स्टूडेंट्स, पोलर बियर और पेंगुइन मींस पोलर रीजन, ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में। एनिमल लाइक पोलर बियर एंड पेंगुइन लिव इन पोलर रीजन्स। These polar regions are called polar region. Polar region means where the temperature 0 to 10. करें स्टूडेंट्स, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वह 0 से 10 होता है। अब समझ लीजिए कि 0 से 10 टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। आप देखते हैं आपके यहाँ विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कभी 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो पूरा एकदम जैसे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स है वह उसका कंडेंसेशन हो जाता है, तो नीचे ड्राप करके आने लगती है, तो आप कहते हैं कि कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, ठंड बहुत तेज कहते हैं ना। अब जो पोलर रीजन होता है स्टूडेंट, वहाँ की तो कंडीशन भी वैसी ही बनी रहती है, हमेशा जहाँ टेम्परेचर 0 to 10, तो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं पोलर बियर और पेंगुइन। अभी हमने आपको पढ़ाया एडाप्टेशन इन एनिमल्स, द एडजस्टमेंट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं, इनके बॉडी में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो अपने आप को पोलर रीजन में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। जब ये पोलर रीजन में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं तो उनके बॉडी में कैरेक्टर भी तो वैसे होंगे। देखिए, जो पहला कैरेक्टर है पहला जो कैरेक्टर है व्हाइट कलर। स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे जो पोलर बियर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का उसका कलर होगा, व्हाइट कलर की स्नो हो गई। अब आप जो उनके एनिमी है वो तो
अपने एनिमी से प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ व्हाइट कलर। वो अपने एनिमी से अपने व्हाइट कलर के द्वारा वो क्या होता है, छिप जाता है, और जो उसके एनिमी है वो समझता है कि वो पोलर बियर नहीं बल्कि क्या है, स्नो, और वहां से चला जाता है। और ये जो व्हाइट हेयर होते हैं बहुत लंबे और घने होते हैं। जब ये लंबे घने होते हैं तो जो वहाँ की जो ठंड है, पोलर रीजन की जो ठंड है, वो ठंड से भी अपने स्किन को बचा लेते हैं। और जो पेंगुइन है, पेंगुइन क्या करती है, पेंगुइन जो है स्पर्ट स्विमर भी है। स्पर्ट स्विमर का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत तेज तैरने वाला। ये तैरते समय अपने पंख का भी इस्तेमाल पानी में करती है, क्योंकि आप ये जानते हैं फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ती नहीं। जिस तरह से डक है उसी तरह से पेंगुइन भी है, ऑस्ट्रिच है, ये फ्लाइटलेस है, लेकिन ये स्पर्ट स्विमर बहुत तेज तैरती है स्टूडेंट्स। लेकिन इस कोल्ड वेदर में बचने के लिए क्या करती है पता है आपको, कि ग्रुप में रहती है। जहाँ रहेगी समूह में रहेगी। जब समूह में रहेगी तो एक पेंगुइन का टेम्परेचर दूसरे का टेम्परेचर कहीं जब समूह में रहेगी तो सबका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जहाँ ये आसानी से रह लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे स्टूडेंट, ठंडियों में आप एक दो लोग पास में लेटते हैं, और जैसे ही विंटर में आप पास पास लेटते हैं, जैसे ही समर सीजन आ जाता है तो आप अकेले एक चारपाई पर लेटते हैं। अब कोई आपके बगल में लेट जाता है तो आपको बहुत पसीना होने लगता है, तो आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप चिल्लाने लगते हैं, तो आपको अलग से एक चारपाई दे दी जाती है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि आप अकेले ठंड लगती रहती है आपको, जब कोई आपके पास आ जाता है तो आप आसानी से एक दूसरे के सहारे सो लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से स्टूडेंट पेंगुइन भी करती है। पेंगुइन क्या करती है, जो बहुत बोल्ड रहती है, ये ग्रुप में हो जाती है। जब कई पेंगुइन साथ में आ जाती हैं तो इनको उतना ठंड नहीं लगती है। और नेचर ने इनको क्या किया है जानते हैं, फैट की लेयर, फैट लेयर व्हाइट कलर हेयर है ये, और ये फैट लेयर है। इनकी त्वचा के नीचे फैट की लेयर होती है मोटी। स्टूडेंट्स, जो फैट की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। ये इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है और इनके बॉडी को वार्म रखती है, जिससे ये आसानी से पोलर रीजन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, you understands this topic, terrestrial animals. Terrestrial animals, they have special characters. Some topics we describe here. Now next is big or defined aquatic animals. Okay, thank you.